So if I talk about, say, basic beginning of the subject, then who is going to let me know ki why do we need, say, Fourier series and Fourier transform? A very simple question to all of you: why do we need a continuous time Fourier series and a continuous time Fourier transform? So can anyone let me know why do we learn it, and ultimately what parameters or what are the things which we are going to get if we go for, say, a Fourier series representation or a Fourier transform representation? A basic I may say differences between these two. So may I have anyone? Okay, to represent signals in terms of frequency domain. Okay, to change domain from time to frequency. Okay, for filtering. Okay, what else? What else? May I have anyone like जो मेरे से बात कर पाएगा? Anyone wants to talk with me regarding, say, Fourier series and Fourier transform? Like, why do we use it, and ultimately, what is the main purpose? May I know your views? Anyone from maybe any of the branches? Sumit, you are correct. Like, to represent signal in a frequency domain. Okay, but if I ask you a very fundamental question, then again, if I come to only Fourier series, then what do you think? What is the function of Fourier series? Only Fourier series. What is हेलो the main function of a Fourier series? हेलो Okay, हाँ बताओ. सर फूरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए रहता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। Okay, okay. And what about Fourier transform? फूरियर ट्रांसफॉर्म से अपन नॉन पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी Okay, डोमेन। okay, okay. And if it comes to, say, Fourier series, तो Fourier series के टर्म्स में हम पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड साइन कोसाइन फंक्शन। Okay, why exponential and sine cosine? Exponential function is a form of magnitude and एंगल। सर परफेक्ट रीजन तो नहीं पता मुझे। Okay, okay. Avish and Isa. Okay. Avish, you are absolutely correct. They are eigenfunction. Cos, sine, and not Euler's formula. I think the correct reason is eigenfunction. तो वो तो अलग ही बात है, वो तो पूरा सिग्नल्स में पढ़ते हैं कि आइगन फंक्शन क्या है. एंड इवन जब हम बात करते हैं फॉर एलटीआई सिस्टम, so in case of signals we only talk about LTI system, or for any of the LTI system I may say cos, sine, and exponential phasor. These are, I may say, eigen functions. So if I talk about eigen function, बहुत अंदर नहीं जाना है उसके अंदर. Eigen function क्या होगा? Avish, if you can unmute yourself and give a brief about it. Hello, sir. हाँ हाँ. So eigenfunctions, they are those functions that remain the same whenever they are. I mean, जब भी eigenfunctions को input देते हैं as an input, तो अगर and if they are passed through an LTI system, तो जो भी हमें output मिलेगा ना, that will be in the same function. मतलब वही function retain हो जाएगा output side पे. थोड़ा शायद से for example अगर phase change हो सकता है, but the Okay. function wouldn't change. एग्जैक्टली जस्ट लाइक आइगन वेक्टर्स. अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? जिनका ओरिएंटेशन, जिनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. इन द सेम मैनर आइगन फंक्शन क्या होगा? ऐसे फंक्शंस जो एलटीआई सिस्टम के अंदर आप डाल रहे हो, आउटपुट में फंक्शन वही का वही रहेगा, जस्ट लाइक कॉस और साइन. मगर आपका जो फंक्शन है इट वुड गेट स्केल अप, या तो फिर वहां फेस चेंज होगा. तो आई में से आपको पता ही होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं, मैं ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूं, कि अगर मैं कोई एलटीआई सिस्टम की बात कर रहा हूं, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम में होता है कि अगर हम एलटीआई सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट दे दिया. सपोज से इनपुट इज ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, a cos of omega naught t. So it is certain that output would be also sinusoidal, and it would be b cos of omega naught t. हाँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगा, ये मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा,
और इट में हैपन यहाँ पे फेज ऐड हो जाए, राइट? तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो कॉस या साइन ही रहेगा एट द आउटपुट। हाँ, द थिंग इज उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड कैन चेंज और फेज कैन चेंज। So basically, it's the idea of I may say eigen function, but let us not talk about it. It's a part of signals. तो अगर मैं simple directly बात कर रहा हूँ कि Fourier series, the first thing which I need to start with is a Fourier series. तो चलिए, help me out with the continuous time Fourier series. I just have a base from Fourier series, and I'll move towards the Fourier transform, because that's what we ultimately require in case of communication. So if we talk about say Fourier series, so I just need an idea regarding say some fundamental Fourier series. So my first question to all of you is, like, can anyone tell me what is the Fourier series of I may say what is the Fourier series representation of cos of omega naught t? Like, can anyone tell me what is the Fourier series representation of cos of omega naught t? और वेट अ सेकंड, अगर मैं फोरियर सीरीज की बात कर रहा हूं तो जो फोरियर सीरीज है वो अल्टीमेटली क्या देता है आपको? बिकॉज आई थिंक देयर आर सम स्टूडेंट्स जो 2022 के भी हैं, उन्होंने सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फोरियर सीरीज के बारे में, तो आई मे से व्हाट इज अ फोरियर सीरीज? तो मेरी बात सुनिएगा और इसको दिमाग में उतार लीजिएगा कि व्हाट इज अ फोरियर सीरीज। सो फोरियर सीरीज इज व्हाट I may say okay, any periodic signal can be represented in terms of weighted harmonics of cos or sine, not cos or कई बार cos and or होता है, that depends on the signal. So I may say cos, I may say and or sine. A basic funda is this. So my very first question is exactly even they are orthogonal. So I may say Isha, it's a different concept जो हमने signals में पढ़ा हुआ था. Now the thing is, अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका मेन मतलब क्या है, फोरियर सीरीज क्या करेगा, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स। यहां पे लिखा है मैंने वेटेड हार्मोनिक्स, इसका मतलब क्या होगा? वेटेड हार्मोनिक्स, इसका मतलब क्या होगा? वेटेड हार्मोनिक्स, इसका मतलब क्या होगा कि जो हार्मोनिक है उन सबका जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज डिफरेंट। इट इज नॉट लाइक सभी जो हार्मोनिक्स है हमें वो चाहिए इन सेम प्रपोर्शन, राइट? सो ये है फोरियर सीरीज। तो अल्टीमेटली अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो फोरियर सीरीज क्या है? फोरियर सीरीज अल्टीमेटली टेल्स अस हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द सिग्नल। बोलो हाँ कि ना? फोरियर सीरीज अल्टीमेटली टेल्स अस हार्मोनिक्स रिप्रेजेंट इन दिस सिग्नल। कितना अमाउंट में है, कितनी मात्रा में है, वो भी बताएगा। वो कौन बताएगा? वो बताएगा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। आई होप आपको an और bn के बारे में मालूम है, राइट? तो an और bn क्या होता है? वो आपको मात्रा देगा, कितनी मात्रा में आपको कॉस या साइन का कौन सा हार्मोनिक लेना है, ये आपको an या bn बोलेगा। बट द थिंग इज, मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं है। इवन मैं डायरेक्टली बात करता हूं तो आई डायरेक्टली कम टू द सिग्नल जो मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, तो मुझे ये बताओ यहां पे कितना कितना फ्रीक्वेंसी आप सबको दिख रहा है। मेरी बात सुनिएगा बेटा, मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो कम्युनिकेशन के अंदर आपको सिग्नल्स का एकदम खतरनाक आइडिया होना चाहिए। कौन कौन सा हार्मोनिक है, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी है तो उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल है, राइट?
तो अगर मैं यहाँ एकदम सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, यहाँ कितना फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है? 1 2 3 4, यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है? व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है। क्या मैं ये सिग्नल को ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ये सिग्नल को ऐसा लिख सकता हूं cos ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी? हाँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, राइट? बट अभी के लिए अभी इसको नहीं लेते हैं cos ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी को। बट नाउ लेट मी नो इफ आई वांट टू फाइंड इस ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज। Okay, right now forget about trigonometric Fourier series. If I go for exponential Fourier series, तो अगर मैं इसको ढंग से लिख रहा हूं तो क्या होता है बेटा? क्या होता है? If I go for exponential Fourier series, तो इसका डेफिनेशन क्या है? एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, तो ये क्या करेगा? आपका किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इन वेटेड एक्सपोनेंशियल्स, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो अगेन इफ आई गो फॉर इसका रिप्रेजेंटेशन तो वो क्या है? वो है आपका x ऑफ t इज इक्वल टू cn इंटू e रेज टू माइनस jn, सॉरी नॉट माइनस, इट्स अ cn j रेज टू e रेज टू jn ओमेगा नॉट t, वेयर n इज रनिंग फ्रॉम कहां से कहां? Where n is running from कहां से कहां? Where n is running from कहां से कहां? Exactly, Avish, it is running from, I may say, minus infinite to infinite, right? ये क्यों है? Because ये जो हार्मोनिक्स है, ये हार्मोनिक जो है वो किसके हैं? They are complex harmonics. They are complex harmonics. और मुझे ये बताओ यहां पे Cn क्या बोलेगा? यहां पे Cn क्या बोलेगा? यहां पे Cn क्या बोलेगा? एग्जैक्टली मेरी भाषा में Cn क्या बोलेगा? Cn बोलेगा मात्रा। Cn बोलेगा मात्रा। अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूं इसको तो ये बताएगा क्या? प्रपोर्शन। ये क्या बताएगा? स्पेलिंग बताओ, मैं तो फिर से अंटवाया। प्रपोर्शन, ये क्या देगा हमें? प्रपोर्शन। कितनी मात्रा में हमें लेना है, तो ये होगा आपका प्रपोर्शन कि ये हार्मोनिक जो है वो आप कितनी मात्रा में लोगे। बोलो हाँ कि ना? जो Cn है वो Cn क्या बोलेगा? कितनी मात्रा में आपको वो हार्मोनिक लेना है। बोलो हाँ कि ना? मेनली जो नागपुर वाले हैं, आर यू एबल टू गेट दिस? बिकॉज वडोदरा सेंटर ने मेरे से अभी अभी सिग्नल्स पढ़ा है तो उनको ये चीजें मालूम है एंड दे आर हैबिचुअल विद दिस। मगर मुझे ये बताओ जो नागपुर सेंटर है, आर यू एबल टू फॉलो दिस? ओके, तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दाल पकानी है या कोई भी चीज पकानी है आपको, आई में से कुछ रसगुल्ला बनाना है या जामुन बनाना है या एनीथिंग एल्स, जो भी आपको प्रिपेयर करना है, सपोज चाय बनानी है, राइट? सपोज मुझे टी बनानी है, चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए रहेगी, आई में से पानी चाहिए रहेगा, शक्कर, आई में से चाय पत्ती, धनिया नहीं, और क्या होता है? जिंजर, या तो फिर जो जो भी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। जैसे कि पानी हो गया, दूध तो भूल ही गया मैं, हाँ पानी हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, चाय मसाला हो गया। ये सभी चीजें जो है ना, ये कौन है? ये हमारे हार्मोनिक्स हैं। ये हमारे हार्मोनिक्स हैं जो बेसिक इंग्रेडिएंट है। मगर वो कितने अमाउंट में चाहिए, तो क्या बोलती है तरला दलाल जी? स्वादानुसार। तो स्वादानुसार हमें कितना कितना प्रपोर्शन लेना है इन सभी चीजों का, वो डिपेंड करेगा। और वो कौन देगा हमें यहाँ पे? फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। बोलो हाँ कि ना? इट इज जस्ट सिंपल लाइक दैट कि हमें कितना प्रपोर्शन चाहिए ऑफ हमारे हार्मोनिक्स, ये प्रपोर्शन कौन बताएगा? फोरियर सीरीज। मगर अगर मैं यहां पे सिंपल बात कर रहा हूं तो माय वेरी सिंपल क्वेश्चन इज कि यहां पे आपको दिखता है कि एक ही हार्मोनिक है। अब एक हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? अगर मैं इसको देख रहा हूं इन कम्युनिकेशन, तो इन कम्युनिकेशन एक हार्मोनिक का मतलब कोई बता पाएगा? रियल लाइफ में एक हार्मोनिक का मतलब क्या होगा? नहीं, रियल लाइफ में
रियल लाइफ में, रियल लाइफ में अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? ओके 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 ओके, लिव इट लिव इट लिव इट लिव इट। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके ओके। चलिए चलिए, तो अभी आप कम्युनिकेशन इंजीनियर नहीं बने हो। चलिए, लेट मी शो यू समथिंग। आई थिंक यू वुड बी एबल टू लिसन टू इट। ओके, एक ही मिनट। हाँ, ओके, आई थिंक यू वुड बी एबल टू लिसन टू इट। ओके, तो आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। जस्ट मुझे बताना आपको वो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे बताओ, इंसान लोग कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं? इंसान लोग कहां से कहां तक का फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं? मैक्सिमम कहां तक का फ्रीक्वेंसी हम इंसान लोग सुन पाते हैं? एग्जैक्टली मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज, राइट। चलिए, तो आज करते हैं आपके कानों का टेस्टिंग। आज करते हैं आपके कानों का टेस्टिंग और देखते हैं आपके कान कितने अच्छे हैं, राइट। चलिए, तो अभी कौन सा फ्रीक्वेंसी प्ले करने जा रहा हूं मैं? अभी मैं कौन सा फ्रीक्वेंसी प्ले करने जा रहा हूं? 1 हर्ट्ज, राइट। देखते हैं कौन कौन लोग जो है वो 1 हर्ट्ज को सुन पाता है। ओके, पहले कुछ सुनाई देता है वो सुनते हैं, राइट। आवाज आ रही है आपको? ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? 650 हर्ट्ज, ओके। चलिए, अब टेस्टिंग चालू करते हैं आपके कानों का। 1 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है? 1 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है आपको? ऑब्वियसली नो, वी आर नॉट एबल टू लिसन टू दी 1 हर्ट्ज, राइट। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। 20 हर्ट्ज नहीं। 100 हर्ट्ज, आवाज आई कुछ? ओके, 150 करता हूं। इट्स 150 हर्ट्ज। लेट मी इंक्रीज साउंड। अब आ रही है आवाज? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। So it is 150 hertz. I am moving towards high frequency. ये लड़कियों की चिल्लाने की आवाज है। जनरली लड़कियों का जो वोकल कॉर्ड होता है वो एकदम धड़ाधड़ से होता है, लाइक उनका हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। ये लड़कियां चिल्ला रही है, राइट। हम लोग जो है, जो इंसान लोग, यानी आप लोग भी इंसान लोग ही हो। वेट वेट वेट, आप लोग भी इंसान लोग ही हो, मगर लड़कियां जो होती हैं उनका वोकल कॉर्ड जो है वो वोकल कॉर्ड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है लड़कियों का। हम जो इंसान यानी हम क्या बोलते हैं अपने आप को, मैं क्या बोलूं, जो मेल, हाँ मेल, जो मेल होते हैं उनका जो वोकल कॉर्ड है वो आई में से होमोसेपियंस वाली वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है वो जनरली होता है दो 2.5 के आसपास। ये लड़कियां है, चिल्ला रही है, इसके आगे तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं। ओके, सुन पा रहे हो अभी भी फ्रीक्वेंसी? अभी भी आप फ्रीक्वेंसी सुन पा रहे हो? वाह, आप सबके कान बहुत अच्छे हैं। अप टू 6.5 हर्ट्ज, 6.5 किलो हर्ट्ज यू आर एबल टू लिसन, राइट। नाउ देखो, आवाज और टीना होता जा रहा है। बस खत्म, बस खत्म। तो मुझे ये बताओ, अब सिंगल टोन, ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है। आई में से वी हैव सेड, अरे यार बस। ओके, सपोज
suppose we have 5000 hertz, right? Suppose we have 5000 hertz. So what do you think? जो 5000 hertz है वो एक ही फ्रीक्वेंसी है. यहां पे जो लिखा हुआ है वो है cos of omega naught t. तो यहां पे ये एक ही फ्रीक्वेंसी है. तो अभी अगर एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो एक फ्रीक्वेंसी से आपका मतलब ये होना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं सिंगल टोन का. सर बात कर रहे हैं सिंगल टोन का. सिंगल टोन का मतलब क्या होता है? ए बी सी. तो इवन यू विल फील कि आपका जो वोकल कॉर्ड है ना वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है. सिंगल टोन का मतलब क्या होगा कि एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है. बोलो हाँ कि ना. सबको ये बात समझ में आई है? इफ आई टॉक अबाउट सिंगल टोन, गिटार में टोन होता है, तबले में टोन होता है. टोन यानी क्या? टंग 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 टंग, एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है. सो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो अगर कोई कम्युनिकेशन के लिए बात कर रहा है आपके साथ, तो अगर वो बोलता है cos of omega naught t, तो आप बोलोगे ये फंडामेंटल तो है, मगर साथ साथ में अगर ये हमारा मैसेज सिग्नल है तो बेटा ये सिंगल टोन है. बोलो हाँ कि ना. कम्युनिकेशन में आई यूज दिस टर्म्स, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मैं सिंगल टोन की बात कर रहा हूं तो व्हाट डू आई मीन बाय द सिंगल टोन. सो व्हाट डू आई मीन बाय द सिंगल टोन, इसका मतलब क्या होगा? सिंगल टोन यानी क्या? सिंगल टोन यानी क्या? वहां कितना फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है? वहां एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है, राइट? अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है. यहां बात कर रहा हूं सिंगल टोन का, मगर यहां पे मुझे ये बताओ यहां पे कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है. अभी आपको बताना है हाँ फंडामेंटल, मगर कौन सा? मुझे अभी चाहिए आंसर हर्ट्ज के अंदर. हर्ट्ज के अंदर, नॉट इन रेडियन पर सेकंड, बिकॉज हमारा आंसर जो ऑलवेज होगा वो क्या होगा? एफ नॉट, राइट? अभी जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है वो है एफ नॉट हर्ट्ज. सबको ये बात समझ में आई है? यहां एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है जो है एफ नॉट. मगर अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे किसके बारे में? वी राइट नाउ टॉक अबाउट अ फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट. तो मुझे ये बताओ अगर हम यहां पे बात करेंगे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के बारे में, तो चलिए मुझे हेल्प कीजिए. यहां पे मैं क्या लिखूंगा इसको? मुझे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट चाहिए, तो बोलिए cos ऑफ ओमेगा नॉट टी. इसको मैं क्या लिख पाऊंगा? इसको मैं डेफिनेटली लिख पाऊंगा क्या? आई में से 1/2 e रेस टू j ओमेगा नॉट टी प्लस आई में से 1/2 e रेस टू माइनस j ओमेगा नॉट टी. बोलो हाँ कि ना. बोलो हाँ कि ना. अगर मैं ऐसा लिख पाऊंगा तो बताइए अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इनमें से 1/2. इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा हूं. मैनिपुलेट करके कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? बोलो हाँ कि ना. मैं इसको मैनिपुलेट करके कैन आई राइट इट समथिंग लाइक दिस विथ योर ड्यू परमिशन? लिखूं ऐसा? अच्छा, अगर आप अब ये फोरियर सीरीज को यहां पे, ये जो है बेटा ये कौन है? कॉस जो है वो कॉस क्या है बेटा? कॉस जो है वो मेरा सिग्नल है जो मुझे रिप्रेजेंट करना है. ये मेरा एक्स ऑफ टी है, ये पीरियोडिक है, राइट? अब मुझे बताओ यहां पे जो समेशन है Cn e रेज टू Jn ओमेगा नॉट टी, वेयर n इज रनिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. तो बताओ यहां पे आपको n क्या दिख रहा है? यहां पे आपको n क्या दिख रहा है? यहां पे फॉर दिस कंपेयर और बताओ यहां पे n क्या दिख रहा है? यहां पे n क्या है? आई थिंक यहां पे n 1 है, और यहां पे n क्या है बेटा? यहां पे n क्या है? यहां पे n आपका -1 है. सबको ये दिखा? सबको ये दिखा? आपका यहां पे n 1 है और यहां पे n -1 है. अगर आपको ये चीज मालूम पड़ रही है तो आप क्लियर कट यहां बोल पाओगे कि सर ये जो है ना इसको मैं बोलेगा C1 और इसको मैं बोलेगा C-1. बोलो हाँ कि ना. बोलो हाँ कि ना. सबको मालूम पड़ा ये? I know for Vadodara center it is I may say very slow, but I don't know Nagpur center जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इन सिग्नल्स. एंड इवन आप वडोदरा वाले भी कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कितना पता है, कितना याद है आपको. इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं.
कल तक हमारा रिवीजन खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। तो मुझे बताओ ये चीज मालूम पड़ा आपको कि यहाँ पे आपका दो कोएफिशिएंट है C1 C-1 विथ मात्रा, कितनी है मात्रा, कितनी है मात्रा, 1/2 1/2, बोलो हाँ कि ना, विद द मात्रा ऑफ 1/2 एंड 1/2, राइट। तो हमें ये यहां से मालूम पड़ता है कि cos ऑफ ओमेगा नॉट टी, जो cos ऑफ ओमेगा नॉट टी है, यहां पे अगर हम इसको स्पेक्ट्रम में ड्रॉ करेंगे, अगर हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, सो व्हाट डू वी हैव in case of a spectrum, what do we have? So ultimately what we are going to have कि अगर हम यहां पे बात करेंगे इसके हार्मोनिक्स की और इससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और बाकी सब चीजों का, तो मुझे यहां पे ये बताओ, यहां पे आपको हार्मोनिक्स कहां कहां मिले हैं, आपको जो Cn मिला है वो Cn कहां कहां मिला है, ये आपका n है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Cn की। तो मुझे बताओ यहां पे n जो है वो n नॉन जीरो कहां कहां है, n नॉन जीरो कहां कहां है, यहां कौन कौन से हार्मोनिक्स हैं, तो आप यहां बोलोगे यहां एक ही हार्मोनिक है, यहां एक ही हार्मोनिक है, राइट, ओमेगा नॉट। मगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, इसीलिए आपके पास यहां दो हार्मोनिक आएंगे। क्यों? बिकॉज यू कैन डिकम्पोज कॉस इन टर्म्स ऑफ e raised to j omega naught t and e raised to minus j omega naught t, right? And that's why you have two harmonics of complex exponential। एक कहां पे होगा बेटा, एक कहां पे होगा, तो आई में से -1 पे होगा, और एक कहां पे होगा, +1 पे होगा, विद द एम्पलीट्यूड ऑफ कितना, विद द एम्पलीट्यूड ऑफ कितना, कितनी मात्रा में चाहिए हमें ये दोनों हार्मोनिक्स टू कंस्ट्रक्ट अ रियल लाइफ कॉस सिग्नल, टू कंस्ट्रक्ट अ रियल लाइफ कॉस सिग्नल, हमें कितनी मात्रा में चाहिए ये दोनों, एग्जैक्टली चाहिए 1/2। बोलिए हाँ कि ना, सबको ये बात समझ में आई है, सबको ये बात समझ में आई है, हाँ, शैल आई मूव अहेड, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं, फोरियर सीरीज नहीं है, हमारा मेन फोकस जो है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो शैल आई मूव अहेड फ्रॉम दिस, ओके। तो ये दोनों कितना चाहिए, ये दोनों चाहिए हमें विद द सेम प्रपोर्शन, जो हो जाएगा 1/2, राइट। अब मुझे आपसे ये चाहिए कि बेटा मैं यहां से, ये मुझे बताओ ये कौन है, ये पूरा जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इज इट अ फोरियर सीरीज और अ फोरियर ट्रांसफॉर्म, इज इट अ फोरियर सीरीज और अ फोरियर ट्रांसफॉर्म, अ फोरियर सीरीज, राइट। इवन आपको ये पता होगा कि रियल टाइम सिग्नल, और रियल टाइम सिग्नल कब बनेगा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि x ऑफ t रियल कब होगा, तो कोई बता पाएगा, x of t is a real signal, x of t is a real signal if and only if, क्या, if and only if Cn क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली if and only if Cn क्या होना चाहिए, Cn होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बोलो हाँ कि ना, if and only if Cn has to be complex conjugate, Cn has to be complex conjugate, complex conjugate, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, नेचर ऑफ Cn हैज टू बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये क्यों होगा, कैसे होगा, अभी के लिए इट्स ओके, अगर नहीं समझ पा रहे हो या अभी के लिए इसको याद रख लो, राइट, कि Cn हैज टू बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और इसीलिए जब भी हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं तो इवन वी ड्रॉ इट फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, हम उसको ड्रॉ करते हैं इवन फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक, बिकॉज रियल लाइफ में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बोलो हाँ कि ना, रियल लाइफ में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करोगे तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर रियल लाइफ में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम वहां पे ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, तो भैया ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जनरली यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फॉर एनालिसिस, और इसीलिए एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के अंदर रियल टाइम सिग्नल तब बनेगा जब
Cn जो है वहां पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नेचर में आ रहे हैं, यानी कि अगर C1 अवेलेबल है तो C-1 भी होगा ही होगा। बोलो हाँ कि ना? ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हो? ये बेसिक बेसिक चीजें समझ रहे हो? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ इफ आई मूव अहेड फ्रॉम दिस, तो मुझे ये बताओ, ये तो फोरियर सीरीज है, ये तो फोरियर सीरीज है, मगर मुझे निकालना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसी का पीरियोडिक सिग्नल का ही निकालना है मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कोई मुझे हेल्प करेगा, हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल पाएंगे? पीरियोडिक सिग्नल का ही मुझे निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। पहले तो इज इट पॉसिबल? पहले तो इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमें चाहिए एक सिंगल टूल, एक सिंगल मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू फॉर एनालिसिस। पीरियोडिक हो, ये सबके लिए मुझे एक ही टूल चाहिए। अब आप सबका ध्यान चाहिए मुझे कंप्यूटर पे ऊपर, तो अब मेरे ध्यान से बात सुनिएगा। वो जो टूल है वो कौन है? वो टूल है आपका कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अ कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे इन कम्युनिकेशन। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसका डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन सिंपल है। इसका डेफिनेशन क्या है? ये क्या बोलता है? यहां भी हम क्या करेंगे, हम किसी भी सिग्नल को अगेन रिप्रेजेंट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। मगर यहां क्या हो जाएगा? यहां हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल का। यहां हम किसके लिए बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आई में से रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई में से ए पीरियोडिक सिग्नल्स। जनरली ये होता है फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल्स, जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिफाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। बट इट्स ओके, इसका डेफिनेशन क्या है? ये सब काम में लगेगा, ये लिखते रहना कहीं ना कहीं। ये होता है आपका, मैं लिख रहा हूं अभी एफ के अंदर, तो एफ के अंदर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ अ सिग्नल, तो आई में से एक्स ऑफ टी ई रेस टू जे 2 पाई एफ टी डी टी, राइट? माइनस जे 2 पाई एफ टी, यह होगा आपका फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अगर हम बात कर रहे हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो हमें मिलेगा स्मॉल एक्स ऑफ टी, वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अवेलेबल क्या होगा हमारे पास? स्पेक्ट्रम ई रेस टू जे 2 पाई एफ टी डी टी डी एफ। अब आपको समझना क्या है स्पेक्ट्रम एंड टाइम डोमेन, आपको समझना क्या है स्पेक्ट्रम एंड टाइम डोमेन। तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि यहां पे वहां 1/2 पाई फूपाई कुछ नहीं आया। आपको क्वेश्चन ये होगा कि 1/2 पाई फूपाई क्यों नहीं आया? तो क्यों नहीं आया एग्जैक्टली यहां मैं बात कर रहा हूं एफ के बारे में। इसका एक और वर्जन क्या है? इसका एक और वर्जन जो आप सिग्नल्स में पढ़ते हो वो है 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ ओमेगा ई रेस टू आई में से जे ओमेगा टी डी ओमेगा। बोलो हाँ कि ना? इसी का ही एक वर्जन ये भी होता है, जो होता है इन एसएनएस, इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। मगर अभी के लिए इन अ कम्युनिकेशन वी टॉक अबाउट ओनली फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, राइट? शैल आई मूव अहेड? आपको मैं सिखा रहा हूं, आपको मैथ सिखा रहा हूं, डोंट वरी। मैं आपको स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। सो शैल आई मूव अहेड? पर्पस क्लियर होगा आप सबको, डोंट वरी, पर्पस वुड बी क्लियर टू यू। ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो अगर मैं बात कर रहा हूं पहला फंक्शन जो मैं ले रहा हूं, जो मैं जनरली क्लास में लेता हूं, वो है सपोज आई में से ई रेस टू माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी फॉर ए मोर देन 0। कैन यू फाइंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म?
कैन यू फाइंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म? तो मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, इज इट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? इज इट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? I want answer from Nagpur branch. Is it absolutely integrable? अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको ये सब तो मालूम है ना, ये सिग्नल कैसा दिखाई देगा? मैं उतना अंदर नहीं जा रहा हूं. हाँ हाँ, ओके. तो इज इट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? यस. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर इसका से फोरियर ट्रांसफॉर्म. हाउ वुड यू फाइंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म? क्या होगा? आपको लिटरली फाइंड करना है. इफ यू फाइंड इट, मैं की चीज समझा रहा हूं बस, और कुछ नहीं. ये क्या होगा? ये होगा आपका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, जो भी सिग्नल देके रखा है वो e रेज टू माइनस जे 2π/ft dt. चलिए, आप इसको सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर क्या होगा, बताएगा मुझे? पहले तो ये डेफिनेशन है वो एक्सेप्ट करो, एंड देन जस्ट गो फॉर द मैथ्स एंड गेट मी द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन. If I help you out somewhat over here, in that case, my integration is, I may say, from minus infinite to infinite, but x of t is what? It's e raised to minus at into u of t into e raised to minus j 2π/ft dt. अब because of u of t क्या होगा? Because of u of t क्या होगा? ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट था, अब वो कहां से कहां हो जाएगा? बिकॉज ऑफ u ऑफ t, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां हो जाएगा? आप लोग कर रहे हो? मेरी हेल्प चाहिए या आप कर रहे हो? ओके, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आप खुद ही करो. एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ u ऑफ t ये इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. और फिर ये पूरा सॉल्व कीजिए. आपको सॉल्व करना है e रेज टू माइनस at इंटू e रेज टू माइनस जे 2π/ft dt. चलिए, मुझे बताओ ये पूरा क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या हो रहा है? एग्जैक्टली सबका आंसर क्या हो रहा है? सबका आंसर जो हो रहा है, और अभी से मैं क्या क्या यूज करूंगा, कुछ कलर कोड यूज करूंगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा. फॉर टाइम डोमेन आई यूज ब्लैक कलर, एंड फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन आई में से रेड कलर. सो फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन, अगर आप इसको ढंग से देख रहे हो या आपने इसका यहां सही से मैथ्स लगाया है, तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन मिल रहा है इसका, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट्स 1/a प्लस j 2πf. बोलो हाँ कि ना? सबको ये मिल रहा है? सबको ये मिल रहा है? मैं टाइम दूं थोड़ा सॉल्व करने के लिए. बेटा एक बात समझ लो, इन केस ऑफ कम्युनिकेशन मैं कंसेप्ट्स पढ़ा दूंगा, बट मैथ्स जो है वो आपको ही करना रहेगा. इट इज अ प्योरली मैथ्स सब्जेक्ट. और मेरी बात सुनिए, अगेन अगर आपको ये होगा आपका मोटिवेशन कि हाँ ये पढ़ना क्यों है ये सब्जेक्ट, तो बेटा ये सब्जेक्ट पढ़ना इसलिए है क्योंकि जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं 5G, या तो फिर आगे वाला जो भी टेक्नोलॉजी आने वाला है AI बेस्ड या जो भी आएगा, उसमें कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला. तो जैसे VLSI है वैसे ही कम्युनिकेशन है. ये दोनों जो है वो ट्रॉनिक्स के लिए एकदम बूम है अभी. तो इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना है. और सब्जेक्ट, और बिलीव मी, अगर आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आपका इंटरेस्ट है प्रोबेबिलिटी के अंदर, आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर, आई में से रैंडम प्रोसेस, रैंडम सिग्नल्स के अंदर, एंड इवन योर स्टेट्स आर वेरी हाई, स्टेट्स आर रियली गुड,
एंड इवन यू लव सिग्नल्स, मैथ्स, यहां पे भर भर के मैथ्स आएगा, है ना। तो आपका वही मुझे चाहिए कंपेटिबिलिटी, कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है, आप कितना कोप अप कर पा रहे हो। अभी अभी मेरा वो कंफ्यूजन समझो, वो ये है कि आपका सिग्नल्स कितना है, कितना डेप्थ में है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं उसी को जज कर रहा हूं। तो मुझे आप हेल्प कीजिएगा, आपको कितना मालूम है मुझे यहां बताओ, ये आपसे हुआ कि नहीं, अदरवाइज बेफालतू ये खींचता रहूंगा मैं। सो लेट मी नो, सबका ये आंसर आया है? हाँ, सब ये समझ गए हो ये क्या है? अच्छा अच्छा। अब मुझे ये बताओ, हमें क्या मिल गया? जो भी हमारे पास ये सिग्नल था, कैन एनीवन, अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, चलिए मुझे हेल्प कीजिए, अगर मैं इसको ये ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका ये कैसा दिखाई देगा? एक तो बताओ ये कौन से डोमेन में है, एक तो बताओ कि जो सिग्नल है वो कौन से डोमेन में है, तो आप बताओगे टाइम डोमेन में है, राइट। टाइम डोमेन में ये सिग्नल जो है वो कैसा दिखता है? सो आई थिंक वो दिखता है ऐसा कुछ, बोलो हाँ कि ना। टाइम डोमेन में ये जो सिग्नल है वो ऐसा कुछ दिखता है। अब जब हमने निकाला है इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो मुझे ये बताओ, ये जो सिग्नल है, ये जो फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है? जो फ्रीक्वेंसी में निकाला है ये किसका फंक्शन है? एग्जैक्टली, इट इज द फंक्शन ऑफ एफ, मगर मुझे ये बताओ, इज इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आप क्या फाइंड करोगे फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर? For a complex number, what things you can find it out? Exactly, you can find इसका magnitude, as well as you can find इसका phase. बोलो हाँ कि ना? You can find इसका magnitude as well as you can find इसका phase. तो चलिए मुझे बताइए इसका magnitude क्या होगा और इसका phase क्या होगा? इसका magnitude क्या होगा और इसका phase क्या होगा? तो अगर मैं आपकी हेल्प नहीं ले रहा हूं, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एकदम सिंपल है, 1 ये हो जाएगा √(a² + b²). तो आई में से ये हो जाएगा आपका आई में से a² प्लस आई में से 2πf²। बोलो हाँ कि ना? और इसका फेस क्या हो जाएगा? ये a पॉजिटिव है, f पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। चलिए अगर f पॉजिटिव है तो लेट मी नो क्या होगा इसका फेज, और अगर f नेगेटिव है तो इसका फेज क्या होगा? चलिए हेल्प मी आउट। आई थिंक आपको इतना तो मालूम है कि हाउ टू फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर का फेज, क्वाड्रेंट वाइज आई थिंक यू नो, है ना? पता है ना क्वाड्रेंट वाइज पता है ना कैसे फेज निकालते हैं? इफ इट इज a, इट इज JB, तो यहां पे फेस क्या होगा? tan इनवर्स B/A। फोर्थ क्वाड्रेंट में फेस क्या होगा? आई में से tan इनवर्स B/A माइनस और tan इनवर्स B/A। यहां होगा पाई माइनस tan इनवर्स B/A। B यानी मोड की बात कर रहा हूं, ये मोड लेने का, हर जगह पे मोड लेने का, अदरवाइज आप तो अंदर साइन लोगे, फिर साइन कहीं नहीं होता है B और A का, हर जगह पे उसका होता है मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स आई में से मोड ऑफ B/A, यहां भी हो जाएगा वो मोड ऑफ आई में से B/A, यहां भी हो जाएगा वो मोड ऑफ B/A, हाँ, और यहां भी हो जाएगा वो पाई प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ B/A, राइट। चलिए सो नाउ लेट मी नो, अगर फ्रीक्वेंसी आपका पॉजिटिव है तो फेस क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे वही जानना है। जब आपका फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगा तो फेस क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? एग्जैक्टली नेगेटिव होगा, तो वो फेस क्या लिखूंगा मैं? वो फेस लिखूंगा आई में से माइनस tan इनवर्स आई में से 2π इमेजिनरी नंबर अपॉन रियल नंबर। बोलो हाँ कि ना? मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं आपको,
इज इट माइनस टेन इनवर्स इमेजनरी नंबर, वो होगा आपका 2πf डिवाइड बाय रियल नंबर, बोलो हाँ कि ना, राइट। और जब आपका फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तब क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ये समझ में नहीं आया है, यहां पे कोई भी ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया है ये माइनस प्लस कैसे आया? हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया है? ओके ओके। अब मुझे ये बताओ कि आपको यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि जो भी आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आया है वो एफ का फंक्शन है। तो अभी के लिए डोंट थिंक अबाउट फेज, इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, तो बोलो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा देन व्हाट हैपेंस विद द मैग्नीट्यूड? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है देन व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग विद द मैग्नीट्यूड? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है देन व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग विद द मैग्नीट्यूड? इज इट इवन फंक्शन, इज इट ऑड फंक्शन, व्हाट डू यू थिंक? इज इट इवन फंक्शन, इज इट ऑड फंक्शन, क्या लगता है आपको? जो हरकत हो रही है फॉर द पॉजिटिव एफ वो सेम हरकत हो रही है फॉर द नेगेटिव एफ? देख लो यहां पे, जो हरकत हो रही है फॉर द पॉजिटिव एफ वही हरकत हो रही है फॉर द नेगेटिव एफ। पृथ्वीराज मैं बात कर रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उसका फेस। तो मुझे ये बताओ बच्चा लोग, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ओके मुझे ये बताओ, यहां पे f0 डाल दो, यहां पे f0 डाल दो तो क्या आएगा? यहां पे मैग्नीट्यूड के अंदर f0 डाल दो तो क्या आएगा? बेटा मेरे को सबसे इनपुट चाहिए। अगर आपने यहां पे f0 डाला है तो यू विल गेट 1/a। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिवली बढ़ेगा इस साइड पे, तो व्हाट डू यू थिंक मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव यहां पे डालते जाओगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। अगर f इनफाइनाइट है तब वो जीरो को अप्रोच करेगा, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, वो घटता जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस विद द नेगेटिव f? व्हाट हैपेंस विद द नेगेटिव f? अगर यहां नेगेटिव f की वैल्यू डाल रहे हो तो भी क्या होगा, जो पॉजिटिव f पे हो रहा था वही हरकत होगी आपकी फॉर द नेगेटिव f। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, यही होगा, राइट? तो नाउ माय थिंग इज, इसको जो है ना इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी कि क्या? स्पेक्ट्रम यानी कि क्या? फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रम यानी कि क्या? फ्रीक्वेंसी, राइट? और अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम का, विच मींस वी आर प्लॉटिंग मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, बोलो हाँ कि ना, वी आर गोइंग टू प्लॉट मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। और यहां पे क्लियर कट दिख रहा है आपको कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा जो कंपोनेंट है, जो आई में से मात्रा चाहिए वो मात्रा घट रही है, राइट? तो अगर मैं इसी चीज को लेके जा रहा हूं, फिर से लेके जा रहा हूं फॉर माय पीरियोडिक फंक्शंस, क्योंकि वही मेरा काम का टॉपिक है, वो है cos ऑफ 2πf0t। ओके, अगर हम यहां पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेट फॉरगेट दिस, मैं इसके ऊपर आता हूं बाद में, धीरे धीरे आता हूं मैं। अगर आपको अगर मैं निकालता हूं, बेटा अब तक साथ बना हुआ है, अब तक साथ बना हुआ है, सब लोग समझ रहे हो? एक काम करते हैं, कौन कौन है फ्रॉम वडोदरा सेंटर? आप रिप्लाई करना ही मत, बिकॉज आई नो आपको ये सब कुछ पता है। ईशा, अविश, पृथ्वीराज और फिर आई डोंट नो कौन कौन है, बुशित और बाकी सब लोग। सो वडोदरा सेंटर डोंट रिप्लाई मी बैक। जो नागपुर सेंटर है रिप्लाई मी बैक, बिकॉज आई डोंट नो आपका कितना है। आप समझ पा रहे हो? आई एम टू स्लो या सही है? एम आई टू स्लो? थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं?
ओके सही है ना? ओके डन डन डन. ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट से अ सेकंड फंक्शन, सो चलिए हेल्प मी आउट विथ कि एफ ऑफ टी का क्या होगा, एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा. और आपको अभी निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज में ही निकालना है. तो हाउ डू यू फाइंड, यू विल गो फॉर डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलता है, एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हमारा फंक्शन आई में से और ई रेज टू जे 2 पाई एफ टी डी टी. सो लेट मी नो इसका आंसर क्या हो रहा है. इफ यू सॉल्व दिस तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इम्पल्स डेल ऑफ टी ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी. नाउ लेट मी नो ये इम्पल्स जो है वो डिफाइंड कहां पे है. जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो मुझे ये बताओ ये इम्पल्स डिफाइंड कहां पे है, एट विच टाइम इंस्टेंट एग्जैक्टली. ये डिफाइंड है एट t इज इक्वल टू 0, तो वही वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे तो e रेज टू 0 क्या हो जाएगा 1. एंड नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल ऑफ t dt. एंड वी वेरी वेल नो अ एरिया प्रॉपर्टी ऑफ एन इम्पल्स, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1. बोलो हाँ कि ना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1, राइट? सबको ये पता है, आई थिंक इट्स अ वेल नोन फोरियर ट्रांसफॉर्म. हाँ मगर मैं यहां सिग्नल्स को नहीं घुसा रहा हूं. अगर किसी को सिग्नल्स के अंदर याद आ रहा है तो सिग्नल्स के अंदर ये अलग था इन केस ऑफ ओमेगा. मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एफ के बारे में, राइट? तो ये हो जाएगा 1. अब अगर मैं इसको लेता हूं क्या, अगर इसको लेता हूं ध्यान से सुनिएगा, हाँ अगर मैं थर्ड बोल रहा हूं जो है से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, क्या आप ये निकाल पाओगे, सॉरी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ओमेगा, अब ये निकाल पाओगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ओमेगा. डू यू नो इसका डेफिनेशन, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन मालूम है आपको? हाँ क्या है डेफिनेशन उसका डेफिनेशन है एक्स ऑफ टी, अब क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ एफ ई रेज टू जे 2 पाई एफ टी डी एफ. बोलो हाँ कि ना. देख लो आपको ये डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए, आपको ये डेफिनेशन पता होनी ही चाहिए. किसी को नागपुर सेंटर से ये पंगा हो रहा है कि इसको याद कैसे रखें, माइनस कहां है माइनस कहां नहीं है, किसी को ये पंगा है, ये पंगा नहीं है ना? ओके पायल पंगा है. तो पायल हाउ यू शुड रिमेंबर अल्टीमेटली पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस है किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स. हार्मोनिक्स कहां से कहां वेरी करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, राइट पायल? तो हार्मोनिक जो है वो कौन है, हार्मोनिक इज व्हाट आपका ई रेज टू जे ओमेगा नॉट टी, और यहां पे n इज मिसिंग, यहां पे n होगा, क्या होगा ई रेज टू जे एन ओमेगा नॉट टी. बट फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका n नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस हो जाता है. तो आई में से इन केस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म n ओमेगा नॉट वुड बी ओमेगा नॉट. ये डिस्क्रीट है इन अ फोरियर सीरीज, इन अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ये कंटिन्यूअस है. तो ये आपका हार्मोनिक है. तो जब भी आप करोगे क्या, एक्स ऑफ टी को रिप्रेजेंट करोगे तब यहां पे बेटा पॉजिटिव ही आएगा, ई रेज टू जे 2 पाई एफ नॉट टी, ये पॉजिटिव ही आएगा.
मगर जब आप कोफिशिएंट निकाल रहे हो, यानी यहां का क्या होगा, x ऑफ f होगा। अब जब यहां x ऑफ f निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो, तो पायल क्या सोचना है, ये जो है एक्सपोनेंशियल वो यहां पहुंच गया इन डिनोमिनेटर, तो क्या होगा अभी वो हो जाएगा x ऑफ t e रेज टू माइनस j 2 पाई एफ टी डी टी। बोलो हाँ कि ना? हाँ पायल, अगर ऐसे याद रखोगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा, राइट? ओके, हाँ, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इससे पहले, वो हुआ आप सबका? अरे रे, मैं तो फंसा, ला रुको, अरे रे रे रे, ओके, मुझे ये सब निकालना है। हाँ बताओ तो, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ ओमेगा क्या होगा? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ ओमेगा क्या होगा? अभी फीलिंग आ रही है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ ओमेगा ये क्या होगा? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ ओमेगा ये क्या होगा? ओके, और यहां पे ये फीलिंग क्या है? डेल ऑफ टी को आप जानते हो, आप डेल ऑफ टी को जानते हो टाइम डोमेन में, आप डेल ऑफ टी को जानते हो टाइम डोमेन में? बेटा रिप्लाई करो। आप डेल ऑफ टी को टाइम डोमेन में जानते हो ना? वो क्या होगा? वो क्या होगा? इंपल्स होगा। इंपल्स कहां पे होगा? एट टी इज इक्वल टू 0 होगा। ये एक इंपल्स होगा, और इंपल्स कहां पे होगा? एट टी इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब मुझे ये बताओ, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या आया? इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या आया? कैन एनीवन टेल मी? इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या आया? इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या आया? कोई बता पाएगा? हाँ बेटा, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या आ गया? 1 आ गया। इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? इज इट द फंक्शन ऑफ एफ? ये 1 है, इज इट द फंक्शन ऑफ एफ या इंडिपेंडेंट है? इज इट द फंक्शन ऑफ एफ या इंडिपेंडेंट है? वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होगा कि ये कांस्टेंट है एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। बोलो हाँ कि ना? इट इज अ कांस्टेंट 1 एट ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो मुझे ये कौन समझा पाएगा? टाइम डोमेन में इंपल्स और फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 1, इससे मैं क्या समझूं? यहां फीलिंग क्या है? इसमें फीलिंग क्या है? इसका फीलिंग क्या है? मुझे फीलिंग चाहिए। लाइक इफ एनीवन वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ देन अनम्यूट। पहले नागपुर सेंटर ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो आई गो फॉर वडोदरा सेंटर। इसका मतलब क्या है? इसका फीलिंग क्या है? डीसी सिग्नल? ओके, नहीं। डीसी कहां से है? अभिषेक लिंगे, डीसी कहां से है? डीसी नहीं है। डीसी होता है टाइम डोमेन में, यहां तो टाइम डोमेन में इंपल्स है। यही तो मैं बोल रहा हूं, ये सब फीलिंग्स मिसिंग है। सिर्फ सिग्नल्स पढ़ रहे हो इन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। नहीं रे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी में डीसी है। हाँ, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। उससे क्या होगा? सर यानी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म में इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा, और अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उससे इस टाइम डोमेन में इनफाइनाइट टाइम के लिए सिग्नल आएगा। मगर इसका मतलब क्या होगा? सुमित, सुमित होना शायद आप। हाँ इसका मतलब क्या? मगर इसको मैं क्या समझूं? इंपल्स को बनाने के लिए या इंपल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कुछ बता पाओगे इससे? मल्टीटोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, मल्टीटोन
नहीं नहीं, मल्टीटोन फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं। ओके ओके ओके, कुछ नहीं सुन, ट्राई अच्छा था। और कोई ट्राई करना चाहेगा नागपुर से? इसका मतलब क्या बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं जो दिखा रहा हूँ, ऑल्दो इट इज सिग्नल, एग्जैक्टली। ओनकार, ओनकार अनम्यूट करो, सही बोल रहे हो। यस सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या बोल रहे हो, सर बोलो वो बोलो। जब वो जैसे ये स्क्वायर वेव का रहता है तो उसमें जो स्क्वायर के टाइम पीरियड में सारे साइन वेव्स प्रेजेंट रहती है वैसे। हाँ हाँ, वो तो अलग ही कंसेप्ट है। ओनकार यहाँ पे मुझे बताओ, इम्पल्स को डिजाइन करने के लिए क्या चाहिए? ओके ओके ओनकार, आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट? हाँ देखो, ये क्या है, ये क्या है आपके पास, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ किसका? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ किसका? e⁻⁸ राइट? इसका मतलब ये होगा कि अगर e⁻⁸ को कंस्ट्रक्ट करना है इन अ रियल लाइफ, which means you need this kind of signal. I may say this much harmonics. What you need, अगर आपको e⁻⁻ को बनाना है in a real life, so what do you need? You need positive negative frequencies with decreasing magnitude. बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? ओके हाँ, सुमित बताओ बताओ बताओ। सर यानी इम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी ऐड करने पड़ेंगे। Exactly, and that's why it is difficult to construct impulse in real life. You know how beautiful maths is. Impulse represents all the frequencies, all damn frequencies from minus infinite to infinite with a constant amplitude. ये बोलता है कि इम्पल्स को बनाने के लिए रियल लाइफ में आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, कांस्टेंट है, और ये रियल लाइफ में हम कर ही नहीं पाएंगे। जो इम्पल्स है वो कौन है? इम्पल्स इज व्हाट? बिजली। जो बिजली होती है वो इम्पल्स है, राइट? तो वहां भी वी कैन कंसीडर कि वहां पे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, समझ रहे हो ये बात को? ये फीलिंग है, इट इज द फीलिंग ऑफ सिग्नल्स। ये मुझे चाहिए इवन इन कम्युनिकेशन, तब जाके आप लोग बहुत सारी चीजें समझ पाओगे इन कम्युनिकेशन। सबको ये समझ में आया? सभी लोगों को ये समझ में आया? तो अभी अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म और वाई इम्पल्स का 1 आ रहा है, इम्पल्स का 1 आने का मतलब क्या है? अल्टीमेटली अगर मैं एकदम शॉर्टकट या एकदम देसी भाषा में बोल रहा हूं, तो फोरियर क्या करता है? फोरियर क्या करता है? किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन में बनाने के लिए हमें कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना अमाउंट में चाहिए वो इंडिकेट करता है। बोलो हाँ कि ना। ये एक ही चीज वो इंडिकेट करता है, पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट? अच्छा, अब मुझे यहां पे ये बताओ, इसके लिए आपकी फीलिंग क्या है? इसके लिए आपकी फीलिंग क्या है? इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया? इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया? अच्छा, और वो कौन से डोमेन में आया? डोमेन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मैथ्स को फील कीजिए और मजे लीजिए। बिलीव मी, मैथ्स, सिग्नल्स एंड ये कम्युनिकेशन वुड बी इंटरेस्टिंग विथ मी। हाँ, ये कौन से डोमेन में आया? टाइम डोमेन में आया। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, अभी इंपल्स कौन से डोमेन में है? अभी जो इंपल्स है वो कौन से डोमेन में है? अभी जो इंपल्स है वो कौन से डोमेन में है? इंपल्स कौन से डोमेन में है? हेलो, डेल ओमेगा नहीं, इट्स माय गलती, डेल ऑफ एफ, सॉरी, इसको डेल ऑफ एफ ही रखो। हाँ बताओ, अभी इंपल्स कौन से डोमेन में है? तो अभी आई में से जो इंपल्स है, ओके, आई टोल्ड यू कि आई यूज कलर कोड। तो इसका रेड है, तो रेड क्या है? हाँ, डेल ऑफ एफ। हाँ, तो बताओ वो कौन से डोमेन में है इंपल्स? सबको दिख रहा है ना इंपल्स कौन से डोमेन में है? बोलो हाँ कि ना।
एग्जैक्टली इम्पल्स जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, सो आई थिंक इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इम्पल्स जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तो मुझे ये बताओ यहां पे क्या आया। अगर ये इम्पल्स जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, कोई बता पाएगा? इम्पल्स जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तो मुझे ये बताओ आपको यहां पे क्या फीलिंग आ रहा है, आपको यहां पे क्या फीलिंग आ रहा है? इम्पल्स कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है? इम्पल्स जो है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है? अच्छा, जीरो फ्रीक्वेंसी पे है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। जीरो फ्रीक्वेंसी किसका होता है? जीरो फ्रीक्वेंसी किसका होता है? हाँ, डीसी का। डीसी यानी कि अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ओ तेरी, ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है, एक भी चीज नहीं बोल रहा है गलत। ये तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इंपल्स जो है वो जीरो पे है। अब जैसे ही आपको ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिखता है, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यहां जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी जीरो पे है। बोलो हाँ कि ना? यहां पे एक ही फ्रीक्वेंसी है, बोलो हाँ कि ना? आई में से अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, और वो भी कहां है? अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, अ सिंगल, आई में से नॉन जीरो, अ सिंगल नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहां पे है मगर ये कहां पे है? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट कहां पे? एट कहां पे? एफ इज इक्वल टू 0 हर्ट्ज। बोलो हाँ कि ना? अ सिंगल नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट एफ इज इक्वल टू 0। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ डीसी सिग्नल, a DC signal in a time domain, a DC signal in a time domain। बोलो हाँ कि ना? ये फीलिंग आया? ये फीलिंग आ रहा है सबको? सब लोग ये फील कर पा रहे हो? ओके ओके। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, से माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, से अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सपोज फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेरे पास ऐसा कुछ है, आई थिंक आपको इसका मतलब पता है। ये इंपल्स कहां पे होगा, कोई बताएगा? ये इंपल्स कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, कोई बताएगा? ये इंपल्स कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा? प्लस एफ नॉट या माइनस एफ नॉट? प्लस एफ नॉट या माइनस एफ नॉट? प्लस। ओके। अगर किसी को डाउट है तो क्या करोगे? जो भी अंदर इंडेक्स है इसको कंपेयर कर दो जीरो के साथ, तो आपको मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। तो आपका जो अभी इंपल्स है वो एफ नॉट पे है। इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो? माई डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो? इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो? आपका जो इंपल्स है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है? आपका जो इंपल्स है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है? आपका जो इंपल्स है, आई थिंक इट इज एट एफ नॉट फ्रीक्वेंसी। आपका जो इंपल्स है वो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी पे है। तो अब मुझे ये बताओ, इज इट अ सिंगल टोन और मल्टी टोन, और आई में से अ रियल सिग्नल इन अ टाइम डोमेन, या क्या होगा? ये आपका एफ नॉट पे एक एक इंपल्स है। तो एफ नॉट पे एक इंपल्स है, तो मुझे बताओ इसका टाइम डोमेन क्या होगा? कैन यू फाइंड विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, मैं फीलिंग बाद में दिखाता हूं, कैन यू फाइंड इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एफ ई रेज टू जे 2 पाई एफ टी डी टी। हाँ बेटा, आप यहां मैथ्स से मुझे लाके दे सकते हो ये चीज?
चलिए आप लोग मैथ्स फाइंड करो इसका कि मैथ्स से ये क्या आ रहा है. With the help of maths, what are you going to get over here? Let me know. अभी सिर्फ मैथ्स कीजिए, फीलिंग मैं दिखाता हूं, मैं हूं ना. अगेन मैं कलर कोड भूल गया, आपको याद दिलाना है. एक काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं इन अ लाइटर मैनर, लाइक थोड़ा लाइटर पढ़ते हैं, एकदम सीरियस नहीं हो जाना है, बीच में मस्ती वस्ती करते रहेंगे. तो बस आप लोग मुझे बताते रहेगा कि हमें करना क्या है. किसी को जोक बोलना है या चुटकुला सुनाना है तो कर सकते हैं. अच्छा, सुमित को मिल रहा है e⁻²πf0t. बोल लो, बाकी सबको भी यही मिल रहा है. बाकी सबको भी यही मिल रहा है. सबका आंसर ऐसा ही कुछ आ रहा है. लाइक इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा है? इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा है? इज इट e⁻j2πf0t? बताओ सब लोग, ये करेक्ट है? नहीं 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 नहीं, सॉरी मेरी गलती है. इज इट e⁻j2πf0t? ऐसा होगा ना? ऐसा नहीं होगा, आगे माइनस नहीं आएगा. आगे माइनस होगा ना? अच्छा, नहीं होगा, नहीं होगा. e⁻j2πf0t. ओके ओके. अच्छा, अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पे इसके साथ चिपका रहा हूं, so let me know what is the inverse Fourier transform of f plus f0. f plus f0 सीधा है, अब तो इजी है. बताओ क्या होगा? f plus f0 क्या हो जाएगा? अभी माइनस हो जाएगा, e⁻j2πf0t, राइट? तो अगर मैं इसी को ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे फिर से ड्राइंग चाहिए और फिर फीलिंग चाहिए. फीलिंग तो आप लोग ही लाओगे, आप लोग ही समझाओगे मेरे को ऐसा क्यों हुआ. मगर चलिए देखते हैं इसका फीलिंग, राइट? चलिए चलिए चलिए, बताओ अब इंपल्स कहां पे आएगा? अब इंपल्स कहां पे आएगा? अब इंपल्स कहां पे आएगा? एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे आएगा. आई में से कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आएगा? कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आएगा? -f0 पे आएगा. बोलिए हाँ कि ना. सबको ये बात समझ में आ रही है? अभी जो इंपल्स आएगा वो -f0 पे आएगा. बोलो हाँ कि ना. ये रहेगा आपका -f0 पे इंपल्स, राइट? सो नाउ लेट मी नो, इन दोनों से आपकी फीलिंग क्या है? इसका जो है वो ये आ रहा है, इसका जो है वो ये आ रहा है. अभी फीलिंग क्या है? मुझे फीलिंग चाहिए, मैथ्स नहीं चाहिए. कौन बताएगा? और अनम्यूट करके ही बोलिएगा, कोई भी बोल रहा है तो लिखना नहीं है. ओ माय बाप, अब तो आई थिंक यू हैव बिकम फैमिलियर विथ मी, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आफ्टर आस्किंग मी. अभिषेक लेंगे f0/2 है, बाय 2 कहां से आ गया? मैं क्या बोल रहा हूं अभिषेक? मुझे पहले सिर्फ इसका ही फीलिंग बताओ, मुझे सिर्फ इसका ही फीलिंग बताओ कि इसका फीलिंग क्या है. आप क्या समझ रहे हो? जैसे कि आपने यहां पे क्या बोला, यहां पे क्या बोला, यहां पे कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है? यहां फ्रीक्वेंसी डोमेन में कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है? f = 0, विच मीन्स
टाइम डोमेन में इट वुड बी अ डीसी सिग्नल, राइट? वैसे ही यहां पे आपकी क्या फीलिंग है? हाँ सुमित, अनम्यूट करो। सर अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपन इम्पल्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो टाइम डोमेन में उसका फेज चेंज हो रहा है। ओके ओके। मगर सुमित मुझे ये बताओ कि जो पहला फंक्शन है यहाँ, यहाँ फ्रीक्वेंसी में इम्पल्स कहाँ पे है? एफ नॉट पे। एफ नॉट पे। यहाँ पे इम्पल्स कहाँ पे है? माइनस एफ नॉट। अच्छा, यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी है या इसका कॉन्जुगेट अवेलेबल है? एक ही है। यहाँ पे एक ही है या उसका कॉन्जुगेट अवेलेबल है? एक ही है। तो मुझे ये बताओ, करस्पॉन्डिंग जो टाइम डोमेन होगा, वुड इट बी अ रियल सिग्नल और अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल? कॉम्प्लेक्स। तो मिला वो? हाँ। मिला कॉम्प्लेक्स? हेलो, आवाज बंद क्यों हो गई? हाँ, हाँ सर। कॉम्प्लेक्स मिला, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो यहां पे आपको ये देखना है, अभी भी मैं कहां पे बात कर रहा हूं? मैं तो बात कर रहा हूं फूरियर सीरीज का ही। अगर आप मेरे को ढंग से समझ पा रहे हो तो मैं अभी भी क्या बात कर रहा हूं? मैं फूरियर सीरीज का ही बात कर रहा हूं। यहां पे आपका एक हार्मोनिक है, जो कौन है भाई? ये पहला हार्मोनिक है। इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप यही लिखोगे ना, ई रेस टू जे ओमेगा नॉट टी। बोलो हाँ कि ना? ये आपका एक और हार्मोनिक है, जिसको आप क्या लिखोगे? जिसको आप लिखोगे ई रेस टू माइनस जे ओमेगा नॉट टी। बोलो हाँ कि ना? सब लोग ये बात समझ रहे हो? तो ये एक हार्मोनिक है, ये एक हार्मोनिक है, ये दोनों मिला के एक रियल सिग्नल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में अवेलेबल है तब एक रियल सिग्नल बनेगा। मगर 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 अगर मगर 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 सर ने यहां क्या बोला है? सुमित, यहां कौन है? एक ही है हार्मोनिक, एक ही हार्मोनिक है। तो मैं इसको क्या लिखेगा? ऑब्वियसली मैं इसको क्या लिखेगा इन टाइम डोमेन? विदाउट मैथ्स आई राइट इट एज ई रेज टू माइनस जे टू पाई एफ नॉट टी। बोलो हाँ कि ना? विदाउट एनी मैथ्स। सबको ये समझ में आया? फील हुआ ये? मेरे को मैथ्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहां पे। अगर मुझे ये फील हो रहा है, व्हाई शुड आई गो फॉर इवन इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म? मेरी बात समझ रहे हो? मेनली नागपुर वाले मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अगर समझ रहे हो तो मुझे बताओ कि विदाउट इवन नोइंग आप इसको क्या लिखोगे? सीधा ही यहां पे कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है? यहां कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है? माइनस एफ नॉट। हाँ, तो क्या लिखोगे उसको? वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही आएगा। एंड व्हाट इट वुड बी? ई रेज टू माइनस जे टू पाई एफ नॉट टी। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ये पूरा फीलिंग आ रहा है इन सिग्नल्स? देखो क्या फर्क है, सेम टू सेम। बट द थिंग इज, जो आप मैथ्स में कर रहे हो मुझे उसका फीलिंग चाहिए। आर यू फीलिंग इट? हाँ, आई नो आई एम काइंड ऑफ बोरिंग पर्सन जो हर जगह फीलिंग ढूंढता रहता है, बट इट्स रिक्वायर्ड। इट्स रिक्वायर्ड। या चाहे वो मैथ्स है, वो सिग्नल्स है, या कम्युनिकेशन है, या डिवाइसेस है। आर यू फीलिंग इट? हाँ, समझ में आ रहा है सब कुछ? अगर समझ में आ रहा है, सो नाउ माय स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देन व्हाट डू यू थिंक आपको क्या मिलेगा? अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे देन व्हाट डू यू थिंक आपको क्या मिलेगा? तो ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, अब आप समझ गए होंगे कि मेरा मेन पर्पस क्या था, मैं घूम फिर के आ कहा रहा था एग्जैक्टली exactly। अब आपको मुझे समझ गए और मुझे आप जान भी गए। अगर मैं बात करूंगा यहां पे, सपोज ई रेज टू जे टू पाई एफ नॉट टी प्लस ई रेज टू माइनस जे टू पाई एफ नॉट टी, सो लेट मी नो इन दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इन दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? मुझे ये बताओ, इन दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कि डेल ऑफ एफ कौन सा फ्रीक्वेंसी है? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये होगा एफ माइनस एफ नॉट, प्लस ये होगा डेल ऑफ एफ प्लस एफ नॉट। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? सबको ये समझ में आया?
मैंने रिस्पेक्टिव ही लिखा है। हाँ, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है कॉस के अंदर, अगर इसका कॉस करना है तो कॉस क्या होगा, ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ, ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी। सो नाउ लेट मी नो यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, यहां क्या फर्क पड़ेगा, यहां कहां फर्क पड़ेगा, यहां इंपल्स का एरिया क्या है, एग्जैक्टली 1/2, यहां एरिया क्या है 1 है, अब क्या हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, सबको समझ में आया, ये सबको ये चीज समझ में आया है, सब लोग ये बात समझ रहे हो? हाँ, तो अल्टीमेटली अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये है पीरियोडिक फंक्शन, मगर मैंने निकाला उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। टेंटेन है ये है पीरियोडिक सिग्नल, मगर मैंने निकाला उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, मगर कैसे, पार्टियां बिठा के, मैंने पार्टियां बिठाए हैं, मैंने डेफिनेशन कहीं भी यूज नहीं किया है। हाँ, मैंने डेफिनेशन यहां पे यूज किया, कहां पे, डेल एफ माइनस एफ नॉट डेल एफ प्लस एफ नॉट, मैंने यहां डेफिनेशन यूज किया, मगर यहां तो पार्टियां बिठाया है, राइट। मैंने सीधा ये नहीं डाला क्या कॉस के अंदर, मैं उलर में गया। तो अगर हम यहां बात कर रहे हैं किसके बारे में, फॉर कॉस, तो बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन फोरियर ट्रांसफॉर्म, आई में से एफ नॉट माइनस एफ नॉट और साथ में एफ नॉट पे स्पाइक आएगा। बोलो हाँ कि ना, एफ नॉट और माइनस एफ नॉट पे स्पाइक आएगा, मगर स्पाइक का हाइट कितना होगा, जो स्पाइक है इसका हाइट कितना होगा, एरिया, अल्टीमेटली एरिया, एग्जैक्टली एरिया कितना होगा 0.5। किसी को कोई शक कोई डाउट, किसी को भी कोई शक कोई डाउट। अल्टीमेटली ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इन एफ डोमेन, इट इज योर फोरियर सीरीज। देख लो, सेम टू सेम 1/2, ये भी इंपल्स यहां पे और यहां भी हमारा प्लस 1/2 ही आया। क्लियर है, समझ रहे हो? शैल आई मूव अहेड? हाँ बेटा, ये पूरा समझ रहे हो? मैं आगे बढ़ूं, आपको एग्जांपल दूं एक आध खुद से करने के लिए। चलिए एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे कम्युनिकेशन में आसानी रहेगी। चलिए, सो माय क्वेश्चन इज 4 cos 400 पाई टी। चलिए मुझे बताओ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। जब टाइप कर रहे हो अपना आंसर तो आप डेल को स्मॉल डी बोल सकते हो, स्मॉल डी। डेल सिंबल अवेलेबल नहीं है तो यू कैन गो फॉर स्मॉल डी, स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर डेल अभी के लिए हमारे लिए। चलिए बताइए, मुझे आज आपको स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना ही सिखाना है, आप सबको स्पेक्ट्रम सब आना ही चाहिए, अदरवाइज तो कम्युनिकेशन में कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, सुमित टेल्स 2 del of f minus 200 plus 2 del of f plus 200। देख लो बाकी सब लोग सही है कि नहीं। हाँ, मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, इसका स्पेक्ट्रम, यानी कि कहां कहां स्पाइक्स आएंगे। हाँ तो बताओ यहां कहां कहां स्पाइक्स आएंगे, यहां स्पाइक्स कहां कहां आएंगे, यहां स्पाइक्स कहां कहां आएंगे, कैन एनीवन टेल मी, यहां पे स्पाइक्स कहां कहां आएंगे। बहुत सही तन्वी, बहुत सही। अबे ओ वडोदरा वालों, आप समझ तो रहे हो ना, आपको मना कर दिया विच मीन्स आप तो आंसर ही नहीं दे रहे हो। हाँ समझ तो रहे हो ना, हाँ ओके ओके। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा आपका x ऑफ f, हम कर रहे हैं इसका आई में से मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम x ऑफ f। हाँ
तो बताओ यहाँ पे स्पाइक आएगा, कहाँ कहाँ आएगा स्पाइक? स्पाइक आएगा आपका -200 पे और 200 पे, जिसका हाइट कितना होगा? बताओ, हाइट मैटर्स अ लॉट। हाइट कितना होगा? बहुत सही। सबको ये बात समझ में आ रही है? सबको ये बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो शैल आई मूव अहेड विथ माय नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल आई मूव? किसी को डाउट है? रुकूं या आगे बढ़ूं? कोई बोलता भी नहीं है। चलिए, नाउ माय क्वेश्चन इज, से 2 cos 200 pi t प्लस 4 cos 400 pi t। चलिए, कैन यू ड्रॉ इसका स्पेक्ट्रम? हाँ, ड्रॉ मैं कर रहा हूं, आप फटाफट से मुझे हेल्प कीजिए। स्पाइक कहां कहां आएंगे? इज इट सिंगल टोन, मल्टी टोन, क्या है ये? इज इट सिंगल टोन, मल्टी टोन, ये क्या है? सब कुछ बताओ मुझे, चलो फटाफट से बताओ। इज इट सिंगल टोन और मल्टी टोन? इज इट सिंगल टोन और मल्टी टोन? मल्टी टोन, एग्जैक्टली। चलो बताओ, स्पाइक कहां कहां आएंगे? यहां स्पाइक्स कहां कहां आएंगे? एक बार सोच लो और बताओ, यहां स्पाइक्स कहां कहां आएंगे? डोंट वरी, आई एम मेकिंग इट हेल विथ, आई गोइंग टू मेक इट हेल विथ यू, हेल फॉर यू। अभी के लिए जस्ट एंजॉय कीजिए, जो भी इजी इजी चल रहा है, जस्ट एंजॉय इट। हाँ, कहां कहां आएगा? बहुत सही, बहुत सही। इवन लेट मी नो कि हाइट क्या होगा। इवन हाइट क्या होगा ये भी बता दो मुझे। हाइट कितना कितना लेना है? और कौन कौन से कंपोनेंट का हाइट सेम आएगा? कौन कौन से कंपोनेंट का हाइट सेम आएगा? कौन कौन से कंपोनेंट का हाइट सेम आएगा? वो तो मैं यहां ड्रॉ कर ही रहा हूं, तो आई यू विल कम टू नो। सो आई थिंक योर स्पेक्ट्रम वुड बी समथिंग लाइक दिस। बोलो हाँ कि ना? योर स्पेक्ट्रम वुड बी समथिंग लाइक दिस। किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को। योर स्पेक्ट्रम वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अरे यार, क्या हो रहा है? हाँ, स्पाइक्स कहां कहां आएंगे? स्पाइक्स आएंगे, हाँ, ये होगा -200, आई में से -100, आई में से 100 एंड आई में से 200, राइट? एंड ये जो हाइट रहेगा, ये हाइट रहेगा कितना होगा? एग्जैक्टली ये हाइट होगा 1 और ये हाइट हो जाएगा आपका 2। बोलो हाँ कि ना? एग्जैक्टली, गुड गुड, आई थिंक इट्स करेक्ट। चलिए, अब आपके लिए आता है क्वेश्चन जो आप खुद करोगे आपके दिमाग से। 4 cos 200 pi t into cos 400 pi t। चलिए, टेक योर टाइम एंड गेट मी द आंसर। इट्स अ मैथ्स। और मैं क्या बोल रहा हूं, जो लोग अभी आ रहे हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो भैया बोल दो मेरे को। जैसे समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड स्लो है, या तो फिर कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, मगर अगर ये नंबर घट रहा है ना तो मेरे को बहुत दुख होगा। हाँ, आई नो नंबर बढ़ेगा क्योंकि आज नहीं है बहुत सारे वडोदरा वाले बिकॉज ऑफ एग्जाम, बट नागपुर वाले
हम्म, बताओ बताओ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, पृथ्वीराज गॉट द आंसर। चलिए, हु एल्स? पुष्कर, गुड गुड गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, इट्स प्योर मैथ्स, इट्स अ प्योर मैथ्स। यू नीड टू गो फॉर 2cc ओवर हियर, राइट? आप सबको यहां करना पड़ेगा 2cc, राइट? चलिए, तो मुझे बताओ यहाँ पे स्पाइक्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं? यहाँ स्पाइक्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं? आई थिंक 100, I think 100, and next comes at 300, right? Next comes at 300, and same thing happens with say negative frequency. सबको ये मालूम पड़ा है कि हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को क्यों इंडिकेट कर रहे हैं? सब लोगों को ये मालूम पड़ा है कि हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को क्यों इंडिकेट कर रहे हैं? आपकी कॉलेज में या तो फिर इंटरव्यू में, आर यू एबल टू कन्विंस एनीवन? आपकी कॉलेज में या तो फिर कहीं पे भी, इवन इन इंटरव्यू, आर यू एबल टू कन्विंस एनीवन? एग्जैक्टली, यू हैव अ प्रूफ, राइट? यू हैव अ प्रूफ। अगर आप सिंगल फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, और बेसिकली अल्टीमेटली व्हाट वी आर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज और ट्रांसफॉर्म, दैट्स व्हाई इट अकर्स, राइट? हाँ, सबका क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड? आई थिंक सबका आ रहा है मैग्नीट्यूड 1। मैं सॉल्व करूं या सबसे हो गया है ये सॉल्व? मैं ये सॉल्व करूं या सबसे सॉल्व हो गया है? सबसे हो गया है ना? ओके, वैष्णवी सॉल्व करूं? वैष्णवी मुझे ये बताओ, आप क्या लिख सकते हो? ये 2cc है ना? 2cc क्या होता है? 2, यहां 4 है, तो 2 इंटू 2, आई गो फॉर 2cc। 2cc क्या होता है? c प्लस c, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 600 पाई टी प्लस डिफरेंस, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 200 पाई टी। वैष्णवी एंड शुभम, नाउ इज इट क्लियर? ये दो फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लीकेशन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बट एडिशन में वी कैन डू समथिंग, राइट? देयर इज अ लिनियरिटी प्रॉपर्टी, देयर इज नो प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशन। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कन्वोल्यूशन, राइट? फ्रीक्वेंसी में कन्वोल्यूशन होगा, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इसको अलग से सोचो, इसको अलग से सोचो। तो मुझे बताओ, अगर इसको अलग से सोच रहे हो तो इसके लिए स्पाइक्स कहां आएंगे? अगर इसको आप अलग से सोच रहे हो तो मुझे बताओ, यहां पे स्पाइक्स कहां आएंगे? यहां स्पाइक्स कहां पे आएंगे? अगर ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए स्पाइक्स कहां आएगा? बहुत सही, इसके लिए स्पाइक्स आएगा -100 और 100 पे। x2 के लिए स्पाइक कहां पे आएगा? x2 के लिए स्पाइक्स कहां पे आएगा? एग्जैक्टली, -200 एंड +200, राइट? अभी कन्वोल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है? इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट का एडिशन इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इन दोनों के एंडिंग पॉइंट का एडिशन इसका एंडिंग पॉइंट होगा। लो, आ गया, समझे कि नहीं बबुआ? ओ बबुआ, कन्वोल्यूशन का यही रूल होता है क्या? इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट का एडिशन इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों के एंडिंग पॉइंट का एडिशन इनका एंड पॉइंट हो गया, तो अल्टीमेटली ये कन्वोल्यूशन भी है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, शैल आई मूव अहेड?
कुछ दूं इससे अघरा? हेलो, ओके ओके, सब कुछ सब लोग समझ रहे हो ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना ये समझने में? स्पेक्ट्रम को फील कर रहे हो ना? व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? हाँ, पर्पस के लिए तो बात करेंगे, जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे उसमें पर्पस भर भर के आएगा, राइट? चलिए, सो नाउ इट कम्स टू आई मे से डिफिकल्ट वन, नॉट डिफिकल्ट वन, आई मे से okay, say if I go for say 10th question, so 10th is, suppose मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज मेरे पास एक सिग्नल है, राइट, एंड दैट सिग्नल इज ओके, चलो इसके लिए अलग से ही बात करेंगे, वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट। ओके, तो चलिए अभी आपको निकालना है फटाफट से, आई थिंक यू वुड बी एबल टू फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मैं आपको दे रहा हूं। चलिए निकालिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर पल्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। चलिए, और रेक्टेंगुलर पल्स, लेट मी नो क्या होगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये कट जो है वो है -1/2, 1/2, हाइट इज 1, ये आपका x ऑफ t। चलिए, कैन यू फाइंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इन हर्ट्स? इन हर्ट्स, ओके। इस पे जाने से पहले मुझे ये बताओ किन किन लोगों को ये पता है सा और सिंक? मेक सम नॉइज, जिसको सा और सिंक में डिफरेंस पता है, डिफरेंस बिटवीन सा एंड सिंक, मेक सम नॉइज, जिनको मालूम है। ओके, सुमित आपको पता है, बाकी लोग जो नागपुर से हैं इनको डिफरेंस पता है सा और सिंक का? अच्छा, नहीं पता है, ओके, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ओके, इट्स ओके। चलिए चलिए चलिए, मैं काम करता हूं। पहले हम बात करते हैं सा और सिंक के बारे में। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, टेक योर टाइम। देखिए, आप इसको जानते हो, साइन पाई टी डिवाइड बाय पाई टी। कैन यू ड्रॉ दिस फंक्शन? कैन यू ड्रॉ दिस फंक्शन? इट्स ओके, लाइक टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। इवन फंक्शन है, ऑड है, क्या है? अगर वो भी कमेंट कर पाओगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये इवन है या ऑड है या क्या है? अगर ये भी आप कमेंट कर पा रहे हो तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। सोच के बताओ, अभिषेक जो है और बाकी सब जो थे, वैष्णवी, तन्वी, हाँ सब लोग बताओ, ये इवन है, ऑड है, क्या है? ये इवन है, राइट? इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा? ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा? एट 0। कैसे मालूम किया? क्योंकि टाइम 0 पे तो यहां लग जाएगा 0/0, तो यू शुड गो फॉर एल हॉस्पिटल। इफ यू गो फॉर एल हॉस्पिटल तो आपको मिल जाएगा उसका मैग्नीट्यूड 1। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना? हाँ, तो यहां पे इसका वैल्यू आएगा एट t इज इक्वल टू 0, 1। नाउ हाउ शुड यू थिंक अबाउट इट? अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो। साइन पाई टी क्या होगा? साइन पाई टी क्या होगा? इज इट ऑसिलेटरी? साइन पाई टी ऑसिलेटरी होगा, मगर नीचे जो है वो है डिवाइड बाय पाई टी, यानी जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? 1/πt क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट? हाँ, मगर ऊपर जो है वो ऑसिलेशंस तो है, राइट? तो जो फंक्शन है वो फंक्शन कुछ दिखता है ऐसा, कुछ दिखता है ऐसा। एंड एज यू हैव टोल्ड, ये इवन फंक्शन है, तो इस साइड भी इसका शेप ऐसा आएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना? अब मुझे निकालना क्या है? इसके नल। ये नल्स कहां पे हो रहे हैं?
तो कैन एनीवन हेल्प मी आउट कि ये नल्स कहां पे हो रहे हैं? कैन एनीवन हेल्प मी आउट कि ये नल्स कहां पे हो रहे हैं? हाउ वुड यू फाइंड ये नल्स? हाउ वुड यू फाइंड दिस नल्स? क्या करोगे ये नल्स फाइंड करने के लिए? ये नल्स किसकी वजह से है? ये नल्स किसकी वजह से है? इज इट बिकॉज ऑफ साइन और पाई टी? साइन, राइट? तो वी नीड टू कंपेयर पाई टी, वी नीड टू कंपेयर पाई टी, और आई में से साइन पाई टी विथ उसके नल्स। तो साइन के नल्स कहां होते हैं? साइन के नल्स कहां होते हैं? साइन के नल्स कहां होते हैं? साइन जीरो कब होता है? अबे ओ पगला लोग, हाँ साइन जीरो कहां पे होता है? एन पाई पे होता है, बोलो हाँ कि ना? साइन जीरो कहां पे होता है? एन पाई पे होता है। तो यहां पे हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू n सेकेंड्स। वेन n वुड बी इंटीजर, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 2, ये क्या होगा? 3, ये क्या होगा? -1, ये क्या होगा? -2, ये क्या होगा? -3। बोलो हाँ कि ना? तन्वी और आप सब लोग ये समझ पा रहे हो? बिकॉज तन्वी आप बोल रहे थे सिग्नल्स अभी कॉलेज में चालू है और आपको वहां समझ में नहीं आ रहा है। आर यू फॉलोइंग इट? ओके ओके, कॉलेज में ये सब चालू हुआ है या नहीं हुआ है? ओके, समझ रहे हो ना? दैट्स ग्रेट। तो यहां साइन के नल्स हैं, राइट? ओके, मैं यहां थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एंड दैट चेंज इज व्हाट? से if I go for sin t upon t. Now can you draw this function? So चलिए, take your time and draw this function and let me know कि यहां क्या फर्क होगा। It is my x2 of t. So let me know compared to first यहां पे क्या फर्क पड़ेगा? शेप में फर्क पड़ेगा या शेप ऐसा ही रहेगा? शेप में फर्क पड़ेगा या शेप ऐसा ही रहेगा? ऑब्वियसली शेप ऐसा ही रहेगा, राइट? शेप में बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, शेप वुड बी ऑलमोस्ट सेम। मगर क्या फर्क होगा? कहां पे चेंज आएगा? चेंज कहां पे आएगा बेटा? चेंज कहां पे आएगा? नल, एग्जैक्टली। तो बताओ इसके नल्स कहां पे होंगे? इसके नल्स कहां पे होंगे? इसके नल्स कहां पे होंगे? बताओ तो। t इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये पहला नल, ये सेकंड नल, ये थर्ड नल, ये सब कहां पे होंगे? एग्जैक्टली ये कहां पे होंगे? अभी n पाई पे होंगे, बोलो हाँ कि ना? तो ये आई थिंक पाई पे होगा, ये आपका 2 पाई पे होगा, ये आपका 3 पाई पे होगा, ये आपका -पाई पे होगा, बोलो हाँ कि ना? ये सबको समझ में आ रहा है? नाउ आर यू फॉलोइंग इट? रटना नहीं है, इट इज अ मैथ्स, राइट? पाई से एक्सपांड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मैंने किया नहीं है वो, बट हो जाएगा, राइट? हो जाएगा। सो नाउ द थिंग इज, अब आपका ध्यान यहां पे, साइन पाई टी अपॉन पाई टी को बोलते हैं सा पाई टी और सिंक टी, बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ये नोटेशन है,
ये नोटेशन है, इट इज सैंपल फंक्शन, मगर दोनों में फर्क क्या है? सिंक के अंदर पाई जो होता है वो हिडन होता है। सिंक के अंदर यहां पाई इंडिकेट नहीं करते हैं, वो हिडन होता है। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसमें गलती करते हैं। आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। अगर कोई आपको बोलता है क्या सा 20t, इसका मतलब क्या होगा? सा 20t, इसका मतलब क्या होगा? साइन 20t डिवाइड बाई 20t, राइट? मेरी बात समझ रहे हो? मेरे को सुन रहे हो आप सब लोग? अगर कोई आपको यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां आपको देता हूं कि सपोज हमें दिया गया है हमें से 2t, इसका मतलब क्या होगा? साइन 2t अपॉन 2t, राइट? मगर अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है सिंक 2t, इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई आपको बोलता है सिंक 2t, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? साइन 2, यहां पाई जो होता है वो हिडन होता है, पाई साइलेंट होता है। सिंक के अंदर पाई साइलेंट होता है। बोलो हाँ कि ना? अगर ये साइलेंट पाई को आप नहीं जान पाए तो आप एग्जाम में वायलेंट हो जाओगे। गेट सा और सिंक को वाइसे वर्सा कभी भी यूज करता है। गेट का फिक्स नहीं है, वो कभी सा यूज करेगा, कभी सिंक यूज करेगा। मगर आपको समझ में आ रहा है दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है ये समझ रहे हो? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं डेफिनेटली इसको सा 2πt लिख सकता हूं। बोलो हाँ कि ना? मैं इसको डेफिनेटली सा 2πt लिख सकता हूं। सबको ये बात समझ में आई है? मेनली नागपुर वाले 22 की बैच समझ रहे हो? क्लियर है? ओके, नाउ इफ इट इज क्लियर, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। Okay, now I think we should stop here because it would take a longer time. Okay, हाँ सुमित करेक्ट है, it is sync f, मगर मुझे क्या चाहिए? I need somewhat time for this रेक्ट के लिए। तो कुछ नहीं, चलिए कल मिलते हैं 7 बजे। सो कल आपका ये रिवीजन खत्म हो जाएगा, राइट? तो आज के सेशन में कुछ डाउट है किसी को?